Hello everyone. Today we are going to begin with the topic matrices. अगर आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 या किसी कोर्स लाइक बीटेक, बीएससी, BCA, this topic is going to help you a lot. This is extremely important from examination point of view as well as this is very easy and interesting topic. तो आइए समझते हैं matrices का मीनिंग. Friends, matrices is the plural of word matrix. तो सबसे पहले आपको matrix word का मीनिंग समझना जरूरी है. A matrix is an arrangement of elements. These elements could either be your numbers, कोई letters हो सकते हैं या फिर special symbols, etc. in the form of rows and columns. Friends, अगर आपके पास एक set में कुछ elements पड़े हुए हैं, collection है आपके पास, and you are arranging those elements in the form of rows and columns, then that array will be called a matrix. When I am talking about rows, तो rows का meaning आपको समझना जरूरी है, friends. Suppose this is my set A. These are the elements in the collection A. If I want to convert this set into a matrix, then how should I write it? Suppose I have written 1, 0, 2 like this and the last three elements in the next row. Friends, row होती है आपकी horizontal arrangement. जब भी एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं दैट इज नोन एज रो एंड लाइकवाइज वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड द कॉलम. तो आप क्लियरली चेक कर सकते हैं सेट ए जो मेरे पास इनिशियली एक ए सेट था उसके एलिमेंट्स को मैंने अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड दिस हैज बिकम नाउ मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स को हम यूजिंग कैपिटल लेटर्स डिनोट करते हैं दैट इज व्हाई आई हैव रिटन द नेम एज दिस. एंड हाउ डू वी राइट ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स? This you need to understand. We always write the number of rows first. उसको हम generally m बोलते हैं friends. By number of columns denoted by n. तो आप चेक कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में आपके पास 2 rows हैं R1, R2. And if I talk about columns, तो मेरे columns जो vertical arrangement है, this is C1, C2 and C3. So I have 2 rows over here and 3 columns. So clearly my order of matrix here is 2 by 3. This is how we can write any matrix in the general form. मैंने आपको बताया हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. You can take A, B, C, anything. और फ्रेंड्स इसके एलिमेंट को हम यूजिंग स्मॉल लेटर्स डिनोट करते हैं. तो मैंने लिखा A of ij. You need to understand here these subscripts I and J. They are representing row and column respectively. It means this element A lies in ith row and jth column. तो अगर किसी मैट्रिक्स में आपके पास m रोज हैं और आपके पास n कॉलम्स अवेलेबल हैं उस मैट्रिक्स में तो ये एलिमेंट ith रो i यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एंड लाइकवाइज jth कॉलम में ये एलिमेंट आपको लाई करता हुआ मिलेगा. तो एलिमेंट्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और फुल मैट्रिक्स को यूजिंग द कैपिटल लेटर्स एंड दीज सबस्क्रिप्ट्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ respective rows. That element belongs to ith row and jth column. For example, I have taken matrix A. This is my matrix A. And the question is to find its order first of all. तो order के लिए हम सबसे पहले number of rows and number of columns check करेंगे. Let's count it. Horizontal arrangement हमारे पास कितने हैं? Which means I have 3 rows. पहले ऑर्डर लिखते हुए हमेशा we always write the number of rows first. This you have to take care of. We always write the number of rows first and then comes number of columns. तो यहाँ पर मेरे पास 3 rows हुई तो m की वैल्यू हुई 3. Let's count columns now. Vertically arrangement. This is C2 and this is C3. 3 rows और 3 columns मेरे पास हैं. So order becomes 3 by 3. If in the same question I ask you to find element 2, 1. How do we find it? As I explained earlier, first we have I, which is the indicator of respective row, and J is the indicator of column. So my element here lies in the second row and first column. This is my second row, friends, और first column के अंदर. तो आपका element clearly यहाँ पर हुआ. The value of this element is 3, which lies in second row but in the first column. Similarly, आप कोई भी element check कर सकते हैं. If you know the position, so here your element lies in third row and third column. Third column के अंदर आपका element है 6. So your answer here is 6. Easily you can find out the order like this and as well as the values of elements.
लेट्स नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. कितनी टाइप्स हैं? लेट्स डिस्कस वन बाय वन. वेरी फर्स्ट टाइप इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर के नाम से क्लियर है कि जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती थी. इन ज्योमेट्री दैट इज कॉल्ड स्क्वायर. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स. तो इसमें ऐसी मैट्रिक्स जब आपकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड मैथमेटिकली हाउ कैन वी डिनोट इट? जब आपका m इक्वल्स टू n आ जाए, मींस नंबर ऑफ रोज हम m से लिखते थे और n हम लिखते हैं फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. तो दोनों इक्वल आने पर हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैंने मैट्रिक्स B कंसीडर किया. यू कैन नेम इट एनीथिंग, दैट इज योर चॉइस. हियर वी हैव 2 रोज, तो m की वैल्यू हुई 2. नाउ लेट्स चेक वर्टिकल अरेंजमेंट. तो मेरे पास कॉलम्स भी 2 है. क्लियरली माय m इक्वल्स टू n हियर, दैट इज व्हाई दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. The next type is rectangular matrix. Friends, this is the opposite of square matrix. जब आपके number of rows equal ना हो number of columns के, which means your m is not equals to n, then it becomes the rectangular matrix. For example, if I have matrix A, check करिए इसमें हमारे पास 2 rows हैं R1 R2, तो m का ऑर्डर हुआ, m की वैल्यू हुई 2, and vertical arrangement चेक करके मुझे columns मिले 3. Clearly your n is not equal to n here, क्योंकि 2 कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता, which means this is a rectangular matrix. I hope दोनों टाइप्स में डिफरेंस क्लियर हो चुका है सबको. Now the third type is row matrix, when there is only one row. Columns may be any. Friends, यहाँ पर नाम से ही क्लियर है that there is condition particularly on the rows, कि हमारे पास सिंगल रो होनी चाहिए मैट्रिक्स में अवेलेबल. कॉलम्स हमारे पास कितने भी हो सकते हैं. तो एग्जांपल देखिए, मैंने जो मैट्रिक्स A कंसीडर किया, इसमें आपको एक ही हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मिल रहा है, व्हिच मींस देयर इज सिंगल रो. तो m की वैल्यू हो चुकी है 1 एंड n इज द इंडिकेटर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स. काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. तो मेरे पास n के प्लेस पे वैल्यू आई 5. इसमें कॉलम्स हमारे पास 5 हैं, बट योर रो मस्ट बी 1 हियर. Such a matrix is called row matrix. The next is column matrix. अब इस पे कॉलम पर कंडीशन है कि कॉलम एक ही होना चाहिए, रोज में भी एनी. तो एग्जांपल फ्रेंड्स कंसीडर करते हैं. मैट्रिक्स A मैंने कुछ इस तरह से लिया. क्लियरली यू कैन सी देयर इज वन वर्टिकल अरेंजमेंट. कॉलम एक हुआ मेरे पास एंड रोज आई हैव 3 रोज हियर. तो इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3/1, क्योंकि इस पर कंडीशन सिर्फ n पर थी, मींस योर नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी 1 हियर. द नेक्स्ट इज नल और जीरो मैट्रिक्स. एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम इटसेल्फ कि जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हो हमारे पास, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स. तो फ्रेंड्स, मैंने मैट्रिक्स A कंसीडर किया. क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो हियर, सो दिस बिकम्स माय नल मैट्रिक्स. अभी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकती है. जब मैंने ऑर्डर 2/2 लिया तो ये कैसी मैट्रिक्स थी? नल मैट्रिक्स, बट इट इज स्क्वायर बिकॉज़ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हियर. अगर मैं नल मैट्रिक्स में भी रेक्टेंगुलर कंसीडर करूं, फॉर एग्जांपल आई हैव कंसीडर्ड 2 रोज बट 3 कॉलम्स, है ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स ही बिकॉज़ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, बट दिस इज रेक्टेंगुलर बिकॉज़ ऑफ द ऑर्डर, और ये बिकॉज़ ऑफ द ऑर्डर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, पर है दोनों ही नल मैट्रिक्स. The next type is extremely important, which is called diagonal matrix. पहली कंडीशन diagonal matrix के लिए फ्रेंड्स ये है कि it must be a square matrix. Otherwise, in case of rectangular matrix, you cannot discuss this type. So it has to be a square matrix first of all. इसको हम diagonal matrix तब बोलते हैं जब इसके diagonal elements को छोड़कर बाकी सारे elements zero हो जाएं. If all its non-diagonal elements are zero. तो mathematically मैंने इसको लिखा whenever my I is not equals to j, all such elements are equal to zero. इसको अंडरस्टैंड करते हैं with the help of example. If I have taken matrix of order 3/3, क्योंकि स्क्वायर होना जरूरी था, clearly my m is equal to n here. तो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर हो चुकी है, जिसके एलिमेंट्स फ्रेंड्स मैंने कुछ इस टाइप से लिए. If you observe it carefully, इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करिए. इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर जीरो आ चुके हैं इस मैट्रिक्स में. एंड इफ आई टॉक अबाउट द पोजीशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो आप ऑब्जर्व करेंगे इस
इस एलिमेंट की पोजीशन फ्रेंड्स है मेरे पास A11, इट इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी तरह एलिमेंट 2 को ऑब्जर्व करिए, ये लाई कर रहा है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, तो इसकी पोजीशन हुई A22। लाइकवाइज 3 की पोजीशन फ्रेंड्स मेरे पास है, इट लाइज इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम A33। मींस फॉर ऑल सच एलिमेंट्स मेरा I किसके इक्वल था, J के इक्वल। तभी इसकी डेफिनेशन कहती है कि whenever your I is not equals to J, all elements must be 0 except these elements। लीडिंग डायगोनल प्लेस पर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे और बाकी सभी ऐसे एलिमेंट्स जहां I is not equal to J है must be equal to 0। To understand it in a better way, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जब आपका I और J इक्वल है, means the elements lying on the leading diagonal place, A11, this was A22, this is A33। जब भी आपका I equal to J है, वो एलिमेंट्स क्लियरली फ्रेंड्स नॉन जीरो है, यू कैन चेक दैट। इन सभी पर कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट वैल्यू लाई कर रही है। ऐसी टर्म्स जहां पर सबस्क्रिप्ट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, I J के इक्वल नहीं है, ऐसे सारे रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमने क्या लिए, इक्वल टू 0 होने चाहिए हमारे पास। सो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। द नेक्स्ट टाइप इज स्केलर मैट्रिक्स। दिस इज अ स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स फ्रेंड्स। है ये डायगोनल मैट्रिक्स ही, बट ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज देयर इज वन स्पेशल कंडीशन इन दिस, दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल इन दिस। होने ये नॉन जीरो चाहिए, अल्फा इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, ऑफ कोर्स नॉन जीरो, बट इसमें कंडीशन है कि आपके डायगोनल प्लेस पर जो एलिमेंट्स हैं वो सभी इक्वल होने चाहिए आपस में। जबकि हमारे पास इससे प्रीवियस टाइम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, डायगोनल प्लेसेस के एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते थे। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलर, स्केलर का मतलब ही है कांस्टेंट, एक फिक्स्ड वैल्यू। दैट इज व्हाई इसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स सभी आपस में इक्वल हैं। दिस अल्फा I have written in general, it can take any constant number। तो अगर मैंने सपोज अल्फा को 5 लिया, तो यहाँ तीनों अल्फास की जगह पर 5 आ जाएगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ कोर्स दे विल रिमेन इक्वल टू 0। कंडीशन सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पर थी, दिस अल्फा रिमेन्स सेम इन ऑल द डायगोनल प्लेसेस। चाहे ऑर्डर 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, डायगोनल प्लेसेस पर एलिमेंट्स की वैल्यू सेम रहेगी इन केस ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स। And non-diagonal elements, remaining elements are of course 0. The next type is again extremely important type, which is identity or the unit matrix. Friends, this is again a particular type of scalar matrix. आप इसको scalar matrix का particular case भी कह सकते हैं, जिसमें कंडीशन है कि इसके diagonal elements की वैल्यू होगी 1। यूनिट का मतलब ही 1 होता है, हर डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1 होगा एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सो मैथमेटिकली आई हैव रिटन इट ai इक्वल टू 1 मींस जब भी आपके दीज लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जहां पर i इक्वल टू j होता है हमारे पास, वो सभी वैल्यूज होंगी इक्वल टू 1। तो यहां मैंने 1 लिखा एंड ऑल सच प्लेसेस वेयर i इज नॉट इक्वल टू j मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेसेस पर हमारे पास क्या रहेगा, 0। And friends, as the names suggest identity, तो identity matrix को हम in particular denote करते हैं using capital letter I, and 3 here I have taken because the order of matrix, क्योंकि square matrix ही होना चाहिए जब भी हम diagonal की बात करते हैं। rectangle matrix में diagonal बनाना possible नहीं होता, that is why we have to take always a square matrix। square matrix का order 3/3 था, तो मैंने इसको I3 लिखा। this is the indicator कि यहाँ पर हमारे matrix में 3 rows और 3 columns होंगे। अगर आप I2 लेना चाहें तो उसमें आपको 2 rows और 2 columns कंसीडर करने हैं। अगेन वही था, लीडिंग डायगोनल प्लेसेस पर एलिमेंट आएगा 1 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। स्केलर मैट्रिक्स इससे पहले हमने स्टडी किया, अल्फा कैन टेक एनी कांस्टेंट नंबर, अ नॉन जीरो नंबर, बट इन दिस योर अल्फा इज पर्टिकुलरली ऑलवेज 1। तभी हम इसको स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें कंडीशन सिर्फ ये आ गई कि अल्फा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। The next type is upper triangular matrix. Again, for this we have to consider a square matrix first of all. Further friends, condition है in which all the elements below the main diagonal are 0. हमारा main diagonal जिसे हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं,
इसके बिलो सभी एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए हमारे पास। मैथमेटिकली वी कैन से जब भी आपका i ग्रेटर देन j हो, मींस आपके रो की पोजीशन जब भी कॉलम की पोजीशन से ग्रेटर है, ऐसे सभी एलिमेंट्स इक्वल टू होंगे 0। और अगर आप इसके मीनिंग से, इसके नेम से इसको रिलेट करें अपर ट्रायंगुलर, तो ऊपर की तरफ आपको एक ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है इसमें, तभी इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें मेन डायगोनल के बिलो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे 0 and these are the non-zero elements which are making a triangle on the upper side. The next is lower triangular matrix. नाम से ही क्लियर है कि ट्रायंगल इसमें नीचे की तरफ बनेगा. That is why it says a square matrix is said to be lower triangular in which all the elements above main diagonal are 0. This is my main diagonal friends. इसके ऊपर वाले सभी elements 0 हैं. And you can observe that we are going to have a triangle like this in the lower side. तो mathematically अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, whenever your row is less than number of row is less than number of column, तो ऐसे सभी elements हमारे पास क्या होंगे equal to 0. अगर मैं इस element की position की बात करूँ, it is lying in first row but second column. तो clearly यहाँ पर इस element की position में 1 less than 2 है, which means I less than j हुआ, condition is fulfilling, तो इसको हमने put किया 0. इसी तरह ये element था a13, 1 is also less than 3, तभी a13 element भी हमने equal to क्या लिया 0. Like that ये element था lying in second row third column, 2 is again less than 3, तो a23 को भी हमने क्या put किया friends 0. So I hope the introduction of matrices and all the types are clear to everyone. If you are watching my video for the first time, don't forget to press the subscribe button. Stay tuned. I'll meet you in the next video. I will explain you some interesting applications of matrices. Thank you.